that? No? What is that? The breast pic? Breast This? pic, huh? Yeah. Yeah, this one tablet. Low angles. Okay. I'm sorry. हाय दिस आयुष तिवारी। अरे तिवारी जी, नमस्ते। कहाँ से हैं आप? नागपुर। नागपुर। मेरा Okay, we go to now silence, please. Phones on silent, everyone. Rory? What a success, what a debut when it comes to a musical debut. I think this is by far your best looking video. You're talking about the songs. Yeah. You must be getting a lot of rave reviews, lot of accolades. What are your feelings right now? No, I'm very, very excited. I couldn't have thanked the Almighty up there for for a much stronger debut as my first music video. I have so many to thank. First of all, to begin out here, we have Ankit sir out here. Ankit is like a brother to me, but without his magical voice, this wasn't. I can assure you that if we've reached whatever numbers we have, not because of me, it's because of him. Oh. It's his magical voice. I've been a fan of him from his debut till now, and I'm sure it'll go on for all eternity. Of course, along with me, I'm very, very proud to have shared screen space with this gorgeous lady sitting with me, Shreya Sharma. I think if I hadn't received as much confidence from her as a co-star, I don't think this would have been possible. And of course, thank you to Music Garage, the producers who've really pushed this song in all capacity to get it where it is, and it truly deserves it. But somebody who's not here but is the complete backbone of this entire song is my dear brother Athyayan Suman. I think his remarkable execution and his technical expertise has put out such a strong story and such a strong visual delight for our audience to just get captivated with. I think it's a very tough. It was a very tough song when we first heard it, when we were discussing of the kind of story that we wanted to mount this up with. But I think the entire team just fell in place. And needless to say, the fans have loved it. We are getting great reviews. Shreya has been calling me up and telling me about what all all the messages that she's got. But I have been just, being bombarded with messages. Like I said again, once more, I'm passing the buck on to both these beautiful people out here, because they, I think, truly deserve all the credit. I think Ankit sir deserves all the credit. His fans are so excited that he's back with a bang with this one. He's time and again he comes up with one massive surprise for all of us, and this one is definitely something that we're very proud of. Thank you so much, sir. Thank you so much. इतना प्यार, इतना इतनी respect, audience इतना प्यार, आपके fans इतना प्यार, इतना beautiful, and आशिकी, I think one could never go wrong. क्या कहेंगे, इस musical debut के बारे में, श्रेया and Neeta. देखिए, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था गाना, तो मुझे आइडिया नहीं था कि किस पे शूट होगा और कौन फीचर होने वाला है, कौन डायरेक्ट करने वाला है। हम लोग ने राशिद जिन्होंने कंपोज किया गाना, उन्होंने मुझे गाना जिस तरह से बताया, समझाया, मैंने उसको वैसे ही गाने की कोशिश की, और उनके हिसाब से जैसे भी मैं गा पाया, आई थिंक सबको बहुत अच्छा लगा। राशिद ने मुझे भेजा भी था ऑडियो, और फिर मैंने उसको सुना, अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैंने नील से भी बोला था कल कि जब मैंने पहला मुझे राशिद ने कुछ भेजा था, एक डेमो कह लो, वीडियो का जो कुछ भी था, तो मुझे कुछ देर के लिए लगा था कि ये स्टॉक फुटेज यूज़ किया है। मैंने सोचा कि यार ये ऐसा कैसे हो सकता है यार, मतलब ऐसा क्यों? और उसने मुझे पूरी कास्टिंग बता दी थी कि कौन डायरेक्ट कर रहा, कैसे क्या है। मैंने ये होना नहीं चाहिए यार, मतलब सब अच्छे अच्छे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। बट बाद में जब मैंने देखा गाना, तो समझ नहीं आया मुझे कि जब मैं गा रहा था तो ऑफ कोर्स मुझे इतना पता था कि नॉन फिल्म, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि नॉन फिल्म
गाना इस तरह से शूट होगा और इस तरह से परफॉर्मेंस की जाएगी। आई थिंक वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो डायरेक्शन, परफॉर्मेंस आप दोनों की आई थिंक माइंड ब्लोइंग है। जिस तरह से वीडियो शूट हुआ है, जो लोकेशन और जिस तरह के शॉट्स लिए गए हैं और जो स्टोरी है ऑफ कोर्स स्टार्ट टू एंड, वो बहुत कमाल की है और यू नो सबको वीडियो बहुत पसंद आ रहा है और ऑडियो बहुत पसंद आ रहा है, तो अच्छा ही है। आई थिंक हम सबके लिए बहुत अच्छा है। श्रेया, फिल्म डेब्यू लग रहा है हमें तो पहले ये lovely the song, क्या कहेंगे आप? थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट। एंड मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी कोई अच्छा प्रोजेक्ट होता है वो कभी भी किसी एक इंसान की वजह से नहीं होता है। देयर इज सो मच सिनर्जी एंड देर आर सच ब्यूटिफुल पीपल इन्वॉल्व, यू नो, every single person has given their level best and every single person has given such positive vibrations for this song. So starting with Sir's voice, I have been such a huge fan of his, and when I got to know that he's singing, I was like, oh my god, you know, that's I was happy also and I was nervous also. Happy because half my work is done, Nervous because because you couldn't believe it. Yeah. Even I was at happy one point because I was- half my work is done, क्योंकि लोग तो सुनेंगे ही सुनेंगे सर की वजह से, but also because इनका गाना है तो if we are artists we have to come up to the epitome of his voice in our craft. So हमने वो बहुत करने की कोशिश करी है और मैं नर्वस थी। बहुत भारी लग रहा है। नहीं, बट एक्चुअली शी इज नॉट रॉन्ग अबाउट इट कि जिस किस्म के पैथोस से और जिस किस्म के डेप्थ से अंकित भाई ने इस गाने को पेशाया है, यू नो, एज आई एन थिंक आर्टिस्ट। जो बोल रहे हैं नील, मैं पूरा समझ सकता हूँ क्योंकि खुद ही एक म्यूजिकल फैमिली से हैं और हाँ। पता नहीं क्या क्या देखा है, मतलब और शूट किसको पे किसको सुना और है। बाकी मैं ये ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा कि जब पहली बार गाना सुना था और जब अध्ययन ने गाने के बारे में हमसे बताया था, तो जब पहली ही बार मैंने सुन लिया था गाना, मैंने अध्ययन से ये रिक्वेस्ट किया था कि कहानी तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, हमारी जो स्टोरी लाइन जो हाँ। अध्ययन ने सोची थी ऐसे, मगर यहाँ पे जब अगर लिपसिंग कर रहे हैं ना अध्ययन, तो अक्सर ये हम देखते हैं कि क्योंकि म्यूज़िक वीडियो होता है तो बहुत सारे म्यूज़िक वीडियोस जो हैं ग्लैमरस बहुत हो जाते हैं, बड़े बड़े लैविश सेट्स, बड़ी बड़ी यू नो अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ियाँ, बट वो कहानी के ऊपर दे डोंट एवर कॉन्सेंट्रेट। तो पहली बार ये शायद बहुत सोच के हम सब ने एक यू नो एक डिसीजन लिया है कि इसे कुछ अलग करें, कुछ यू नो इस यानी जब लोगों तक एक गाना पहुँचे तो उनके लोगों तक नहीं पहुँचे, उनके दिलों तक पहुँचे। आई थिंक दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट विद दिस सॉन्ग, क्योंकि गाना डिजर्व्स दैट, यू नो, दैट इमोशन. So I think Adhyayan was very, very supportive in that decision. I think it was, you know, it's in fact a very big decision on his part. Contrary, जब लिपसिंग का पोर्शन था, मैंने सोच लिया था कि you know मुझे इस लिपसिंग के पोर्शन में I want to be emotional and I want to cry and of course I want to do it that way. तो मैंने convince तो कर लिया था अध्ययन को, but Adhyayan came up to me and said कि भाई let's keep you also very raw and rugged. Means वो मार पीट के हुआ है तो इसको अभी पोंछ मत, जैसा है वैसे ही जाके लिपसिंग कर ले. So I feel that internally after you know executing, and ये हमने लिपसिंग का पोर्शन जो है लास्ट में शूट वो किया, ब्लड लगा हुआ है लास्ट में, एकदम यानी end 2 दिन में। के पूरे शूट के बाद, and it was 55 degrees where we were shooting. Crazy heat. And it was so hot and there was a sandstorm and we were in a convertible car. The sand was just getting into our We nostrils. were next day we were all like, red. like literally into our nostrils. But you know, I think it was the passion behind wanting to execute this song to that level that just kept us wanting to Lead up go. to musical to debut and after, you know, so you had this conscious in your mind कि lavish होगा, बड़ा होगा, तभी debut होगा. To be very honest, Like a film canvas. to be very honest, मेरा जब पहला फिल्म का डेब्यू हुआ था जॉनी गद्दार, तब भी it was a very conscious effort to do something very different and come, you know, towards my audience, and I was being offered a lot of love stories at that point of time, but मैंने सोच लिया था कि करूँगा तो कुछ अलग सा ही करके पहले अपने ऑडियंस के पास आऊँगा, और तब से एक हमेशा मेरी हर फिल्म के साथ ये एक बड़ा कॉन्शियस डिसीजन रहता है कि क्या किरदार निभा रहा हूँ, कि कौन निर्देशक कौन है,
कौन लोग हैं इस फिल्म के पीछे। 30 फिल्म कर चुका हूँ, 17 नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर्स के साथ काम कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो इस जर्नी से मैंने काफ़ी कुछ सीखी हैं चीज़ें। बट रही बात जब म्यूज़िक की, तो दिस इज़ द सेंटनरी ईयर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स। मेरे दादू के का जन्म शताब्दी है, 22 तारीख को था, एंड वी सेलिब्रेट 100 ईयर्स ऑफ मुकेश जी। तो काफ़ी बड़े बड़े म्यूज़िक लेबल्स काफ़ी समय से मुझे ऑफ़र किए जा रहे थे म्यूज़िक वीडियोस, बट कोई मेरे दादाजी का गाना रीमेक करना चाह रहा है, कोई और गाना करना चाह रहा है, क्योंकि लोग कहते हैं नील यार कन्वेंशनली गुड लुकिंग हो, ये लोग कहते हैं, मैं बट थोड़ा कुछ हिप हॉप गाना करते हैं। बट कहीं ना कहीं वहाँ पर भी कुछ दिल कनेक्ट नहीं हो रहा था। पर जैसे ही हमारे प्रोड्यूसर साहब झुनझुनवाला जी आए और उन्होंने मुझे म्यूज़िक गराज लेबल जी मुझे गाना सुनाया और मुझे उनका विजन बताया इस गाने के बारे में, एकदम से मेरा कनेक्ट हो गया। एंड मैंने कहा कि अगर कोई करेगा ये गाना तो मैं करूँगा, और अगर मैं जानता हूँ जिस किस्म से आप कह रहे हैं, तो मैं जानता हूँ कि बहुत बड़े पैमाने पे गाना बनाने वाले हैं, और जितना वाकई में जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे कई ज़्यादा इन्होंने इस गाने को उस इतने बड़े पैमाने पे शूट भी किया है, प्रमोट भी किया है, और हमारी ऑडियंस तक पहुंचाया भी है। आई थिंक दैट इज़ फॉर एन आर्टिस्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि हम मेहनत करते हैं और जब तक ऑडियंस के पास वो चीज़ पहुंचती नहीं ठीक से, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। मेरे साथ मेरी करियर में बहुत बार ऐसा हुआ है कि फ़िल्म बहुत अच्छी रहती है, बट थिएटर्स में अगर ठीक से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती और रिलीज़ होने के बाद वो फिल्म नहीं चलती, फिर बाद में कोई लोग वो फिल्म देखते हैं और कहते हैं कि अरे वाह कितनी अच्छी फिल्म थी, क्यों नहीं चली। सिमिलरली एक गाने को भी अगर हमने ठीक से प्रमोट नहीं किया, माउंट नहीं किया, उसे उसका वो प्लेटफॉर्म नहीं दिया, तो वो गाना भी लोगों तक नहीं पहुंचता। ऑफ कोर्स वी हैव अ लॉट ऑफ renowned names attached with this, solid technicians, solid music director, solid singer, debuts of 2 of us. But at the same time, I think the entire credit goes to the producer who's really taken this song and made us feel like this is a film launch, not a song launch. Okay. So we are here at Kshitij Festival. What are you looking forward? गाने को इतना प्यार already मिल रहा है. I'm looking forward to the young crowd who's going to be really excited, and I'm really exciting. I'm back to trying my dress college young days. today. Yeah. I participated in so many college festivals. बहुत लोग ये नहीं जानते, जब मैं खुद कॉलेज में था तो मैं फैशन शोज कोरियोग्राफ करता था। एक दौर ऐसा आया था कि जब जॉनी गद्दार फिल्म मेरी अटकी हुई थी फाइनेंसेस को लेकर, और करीबन 2 साल फिल्म नहीं थी, और मैंने उस समय अपने साइनिंग अमाउंट से एक गाड़ी बुक कर ली थी, बट उसके EMI भरने थे फिर भी। तो जब EMI भरने थे और फिल्म रुक गई थी, तो मैंने वापस फिर कॉलेज इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, एंड आई स्टार्टेड कोरियोग्राफिंग अ लॉट ऑफ फैशन शोज टू अर्न a livelihood back then. Of course, from then to now the journey has been excited, and it's so exciting to come back. That was my story. What about you? I'm literally missing my college days like anything. I remember we used to have so many of these fests, and one very beautiful thing, I actually called up my father in the morning and I told him ki Papa, you remember when like people used to come, all the celebrities used to come, I used to host, now I am going somewhere. And he literally had tears in his eyes, and I think that literally made my day. And I'm so happy, because if how much love we have given to the song, if it comes back from the audience, there is nothing else that we can ask for. So yeah. मैं तो जैसे ही यहाँ पे आया ना, वैसे ही बोला कोई लड़का मुझे लेके आ रहा था, मुझे याद नहीं यहाँ पे, हाँ तो उसने बोला अरे आप कैसा लग रहा है तीसरी बार आके। तो मैंने कहा यार तो कहने का मतलब है कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे 1 से 2 बार आ चुका हूँ। क्या बात। और हमेशा बहुत, इट्स नॉट अबाउट यूज्ड टू, कि हमेशा ऐसा लगता है कि मतलब इंतज़ार रहता है ऑफ कोर्स यहाँ पे आने का, कि कुछ ऐसा कोई एक्टिविटी हो और आप पहुँचो और आप सबसे मिलो। मैं जब भी आया हूँ यहाँ बहुत प्यार मिला है, और आज भी मुझे शक नहीं है बिल्कुल भी, बहुत सारा प्यार मिलने वाला है, आई एम श्योर। चलते चलते गाना
वहाँ पे जाके गाना। मैं तो बाथरूम सिंगर हूँ, मेरे से मत बोलना। देखिए प्रॉब्लम यह है कि बाथरूम सिंगर का प्रॉब्लम क्या होता है कि हम आ नहीं सकते वहाँ सुनने, तो आपको ही सुनाना पड़ेगा। Nice one, good one. Okay, I'm missing Rashid. Okay, can we sing together? Yes, Start yes, from the we are top? singing together. From the top. But you have to match my bathroom level, huh? Yeah, but don't flush it down first. तुझसे आगे मेरी सोच जाती नहीं, मैं आशिक तेरा तू मेरी आशिकी, देखूं जब मैं तुझे तब ढले मेरा दिन, तू चाहत मेरी तू मेरी जिंदगी, जिस रोज न देखूं मैं तुझको दिल पागल सा रहता है, तू साथ रहे हर पल मेरे, दिल मेरा मुझसे कहता है, बन गया है तू अब मेरी आशिकी, आशिकी आशिकी, तू मेरी आशिकी। थैंक यू। Thank you. Thank you so much. मैं मैच नहीं कर सकता।